اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومعدته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے مجلسوں کا سلسلہ، آج کی مجلس شب 21 شہادت امام علی علیہ السلام کے عنوان سے ہے. جیسا کہ آپ مومن کے علم میں ہے، کل الحمدللہ اسی امام بارگاہ میں 3:30 بجے مجلس ہے. مجلس کے بعد تابوت علم برآمد ہوگا. جملہ مومنین مومنات انشاءاللہ شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. موجودہ صورتحال کے تحت ساری دنیا میں کورونا پھیلا ہوا ہے. ہم جس اعتبار سے امام علی علیہ السلام کی مجلس، امام کا پروسیشن جس اعتبار سے ہم کرتے تھے، ہمارے ساتھ پابندیاں ہیں. اس کے باوجود ہمارے مومنین سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے، آپ جتنے مومنین مجلس میں شرکت کریں، جتنے مومنات مجلس میں شرکت کریں، آج یا کل آپ ماسک ضرور پہن کر آئیں. انشاءاللہ احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ مولا کی خدمت میں حاضری دیں. انشاءاللہ مولا کے صدقے میں انشاءاللہ یہ بلا، یہ مصیبت بہت جلد خدا دور کرے گا.
درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ انشاءاللہ بہت جلد اس برس کا خاتمہ ہے آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، مخصوصاً جو آل محمد کے چاہنے والے ساری دنیا میں خدا ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے ساری دنیا میں امام علی علیہ السلام کی جو مجالس ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم اپنے امام کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے حق کے امام میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیے کریمہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیے کریمہ، پہلی مجلس آپ نے سے آیے کریمہ کے ضمن میں سنی، کل کی مجلس بھی الحمدللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا، یہ آیت جو ہے حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ شخص تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جتنی تعویلیں، جتنے اعتراضات ناصبیوں کی طرف سے، دشمنان آل محمد کی طرف سے ہو سکتے تھے، کچھ کا جواب کر دیا۔ یہ علی اور آل علی سے دشمنی آج سے نہیں، 1400 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور یہ دشمنی ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، یہ دشمنی چلے گی، قیامت تک یہ دشمنی چلے گی، اور ہم اس دشمنی سے گھبرانے والے بھی نہیں ہیں کہ گھبرا جائیں۔ ہم جانتے ہیں جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے یہ دشمنی کرنے والے دشمنی کریں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ یہ دشمنی کرنے والے دشمنی، ہم گھبراتے بھی نہیں ہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں ظہور امام کا، ہمارا امام آ جائے تاکہ دشمنی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ دشمنی ہوگا، لہذا 1400 سال سے دشمن اپنے انداز کو بدلتا رہا، طرح طرح سے دشمنی کے انداز کو بدلتا رہا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ باطل اپنا راستہ بدلتا رہے گا مختلف عنوان سے، لیکن حق کا راستہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر قیامت تک حق کا راستہ ایک ہے۔ حق کا راستہ نہیں بدلتا، یہ کوفی اور شامی ہے جو اپنے انداز کو مختلف عنوان سے بدلتے ہیں اور علی اور آل علی سے دشمنی کرتے ہیں۔ لہذا دشمنی کا ایک نیا طریقہ نکالا کہ جہاں جہاں قرآن میں امام علی علیہ السلام کے شان میں آیت ہے، دشمنی کا ایک نیا طریقہ، اس کو علی سے ہٹا کر کسی اور سے منسلک کر دو، علی سے ہٹا کر کسی اور سے جوڑ دو۔ اس اعتبار سے یعنی کیا دشمنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اہل بیت کی دشمنی میں قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ قرآن، فقط قرآن، فقط قرآن، یعنی اگر کوئی بات ہو تو قرآن میں یہ ہے نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، فقط یعنی دشمنی آل محمد علیہ السلام میں قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کسی توجہ چاہتا ہوں، کسی کی دشمنی میں اگر کسی کو پیش کیا جائے وہ کون ہونا چاہیے؟ اگر کسی کی دشمنی میں کسی کو پیش کیا جائے وہ مخالف ہونا چاہیے، موافق نہیں۔ آپ ہماری دشمنی میں کسی کو لائیں گے، ہمارے دشمن کو لائیں گے، ہمارے مخالف کو لائیں گے۔ آپ کی دشمنی میں اگر کسی کو لایا جائے گا تو آپ مخالف کو لائیں گے، دشمن کو لائیں گے، لیکن علی اور آل علی کی دشمنی میں قرآن کو لا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن مخالف تو نہیں ہے، قرآن موافق تو نہیں ہے۔ اگر قرآن کو میں یہ کہتا ہوں کیا علی کے دشمن جتنے محدثین تھے کیا وہ مر گئے؟ کیا علی کا دشمن جتنے
मुफस्सिरीन थे क्या वो मर गए? क्या अली के दुश्मन जितने मुअर्रिखीन थे क्या वो मर गए? जो कुरान को ला रहे हैं अली और आले अली की दुश्मनी में, कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा, कुरान अली और आले अली का मुआफिक मुखालिफ नहीं है, बल्कि कुरान अली और आले अली का कसीदा पढ़ रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या कुरान अली और आले अली का कसीदा पढ़ रहा है, कुरान मुआफिक है, मादल्ला नौज़ुबिल्लाह, कुरान मुखालिफ नहीं है। जो अली और आले अली की दुश्मनी में कुरान को लाया जाए, कुरान की जिस आयत को देखिए अली और आले अली का कसीदा पढ़ रहा है। आपको पता है इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है। तवज्जो का तालिब इंशाअल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सुने, धीरे धीरे सुने। मौला के फज़ाइल इंशाअल्लाह हम लोग इस मजलिस में किसी हद तक मौला के हक को अदा कर सके। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद। इब्ने अब्बास कुरान के मुफस्सिर है। इब्ने अब्बास ने कुरान का दर्स और कुरान की तफसीर इब्ने अब्बास ने देना शुरू किया। इब्ने अब्बास क्या है? मुफस्सिर कुरान। इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर को बयान कर रहे हैं, कुरान के दर्स को इब्ने अब्बास दे रहे हैं। माविया के पास कुछ लोग गए और जाकर कहा कि पता है इब्ने अब्बास जो है वो अली के फदाइल बयान कर रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, इब्ने अब्बास अली के फदाइल बयान कर रहे हैं, इमाम अली के। इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। माविया ने कहा कोई मसला नहीं, इब्ने अब्बास बनी हाशिम से हैं, कुरान उनके घर नाजिल हुआ है, वो अगर तफसीर बयान नहीं करेंगे तो फिर कौन तफसीर बयान करेगा? मुफस्सिर कुरान भी है। अगर इब्ने अब्बास अगर कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं तो कुरान की तफसीर बयान करे। उसने कहा नहीं, मसला ये नहीं है, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, कुरान की तफसीर के आड़ में अली के फदाइल बयान कर रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा अली के फदाइल बयान कर रहे हैं। आप जाइए, जाकर शिरकत कीजिए। माविया ने कहा अच्छी बात है, मैं जाता हूँ, जाकर दर्स में शिरकत करूँगा और करने के बाद मैं देखूँगा अगर अली के फदाइल बयान हुए तो हम बता सकते उसी मकाम पर रुकावट का सबब बनेंगे और इस सिलसिले को रोक देंगे। माविया आया, आने के बाद इब्ने अब्बास जो कुरान की तफसीर बयान कर रहे थे, माविया आकर उस मकाम पर बैठ गया। इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान करते रहे, बयान करते रहे, बयान करते रहे। तवज्जो चाहता हूँ, कोई मौका ऐसा नहीं मिला जहाँ पर माविया क्या करता, रुकावट का सबब बनता या कोई एतराज करता, कोई ऐसा मकाम नहीं मिला। पूरा दर्स इब्ने अब्बास का खत्म हो गया। जब पूरा दर्स इब्ने अब्बास का खत्म हो गया तो माविया ने इब्ने अब्बास से कहा इब्ने अब्बास क्या बयान कर रहे हो? कहा कुरान की तफसीर। कहा कुरान की तफसीर बयान कर रहे हो या और कुछ बोल रहे हो? कहा नहीं, कुरान की तफसीर। न कुरान की तफसीर बयान कर रहे हो या और कुछ बता रहे हो? कहा कुरान की तफसीर। माविया ने कहा इब्ने अब्बास हमने सुना है तुम अली के फदाइल बयान कर रहे हो। तो इब्ने अब्बास ने कहा नहीं, कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूँ। कहा हमने सुना तुम अली के फदाइल बयान कर रहे हो। इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, इन्नमा अंता मुंदिरुन लिकुल्लि कौमिन हादा। हर कौम, ये कुरान की एक आयत है। अल्लाह कहता बेशक बेतहकीक मैंने एक मुंदिर भेजा है और उस एक हाथी है। जैसे इब्ने अब्बास ने कहा, आप इब्ने अब्बास ने माविया से कहा आप इस आयत के बारे में बताइए, इस आयत के बारे में आपका क्या नजरिया है? कहा मैं समझ गया। नबी ने फरमाया है मुंदिर पूरे आलमीन को डराने वाला मैं हूँ और हाथी अली इब्न अबी तालिब है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यानी
कायनात के हादी जो है अली इब्न अबी तालिब है। ये आयत तो अली के शान में नाजिल हुई है, लेकिन ऐ इब्न अब्बास क्या तुम यही आयत पढ़ोगे? ये आयत नहीं, कोई और आयत पढ़ो। इब्न अब्बास ने कहा, क्या कहा इब्न अब्बास ने? कुल्लु शैइन अहसना हो फी इमाम मुबीन। कहा कि समझ गए, ये तो इस आयत में अली की इमामत का तस्करा है। अल्लाह कहता है तमाम कायनात का इल्म ऐसा इमाम मुबीन में कर दिया है। क्या यही आयत पढ़ोगे? इसके अलावा कोई और आयत पढ़ो। इब्न अब्बास ने कहा कान्नहुम बुनियानुन मरसूसुन। कहा हाँ समझ गया। जब जंग वहद में सब भाग गए, एक अली थे जो अपने मकाम पर डटे हुए थे। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। छोड़ के चले गए। एक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इमाम अपने मकाम पर खड़ा है। और जब शैतान ने कहा कद कुतला मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, अली इब्न अबी तालिब ने एक हाथ से रसूल खुदा को उठाया और एक हाथ से नबी ये कह रहे हैं ऐ अली देखो काफिर इस तरफ से आ रहे हैं, काफिर इस तरफ से आ रहे हैं, काफिर इस तरफ से आ रहे हैं। मौला कहते मुसलमानों ये रसूल खुदा जिंदा है और तलवार से जिहाद भी कर रहे हैं। जब अली तलवार से जिहाद कर रहे थे, अशरफ अली थानवी ने कहा, क्या कहा अशरफ अली थानवी ने कि जब अली इब्न अबी तालिब जिहाद कर रहे थे तो नबी ने फरमाया ऐ अली सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो या किसी ने अली इब्न अबी तालिब से कहा ऐ अली सब चले गए, आप क्यों नहीं गए? तो अली ने एक जुमला कहा अफरतु बादल ईमान, क्या मैं ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार कर लेता? सुनो सुनो, अली ने फरमाया अगर सब भाग जाते तो मैं अली कह रहा हूं या मैं मैदान में लड़के मर जाता या मोहम्मद का दीन कायम कर जाता। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं लड़के मर जाता या मोहम्मद का दीन कायम कर जाता। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मौला उस मकाम पर मौजूद है। जनाब जिब्रील ने देखा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जिब्रील ने कहा अल्लाह का रसूल जानिसारी इसी को कहते हैं, वफादारी इसी को कहते हैं। सब चले गए लेकिन आप नहीं गए, बस ये सुनना था। नबी ने कहा कैफा ला हुआ अली उन मिन्नी व अना मिन हो, कैसे न हो अली मुझसे है मैं अली से हूँ। ये आसमान के फरिश्ते अजब फरिश्ते थे, यानी जमीन वालों ने कभी आसमान वालों में शामिल होने की तमन्ना नहीं की, लेकिन आसमान वाले हैं जो जमीन वालों में शामिल होने की तमन्ना कर रहे हैं। जब रसूल ने कहा कैफा ला हुआ अली उन मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। जिब्रील कहता अना मिन कुमा, मैं तो आप दोनों से हूँ। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अली मैं आप दोनों से हूँ। अजब मंजिल है जब जमीन पर ये 5 अफराद पाक पंजतन जमा हो जाते जमीन पर और अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश हो रही है, तो जिब्रील फरिश्ता ये पूछता पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह पंजतन का तारुफ करवा रहा है। या मलाइकाती या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतन
वला अर्धन मदियतों वला कमरन मुनीरों वला शमशम मोदियतों वला फुल्कन यदूर वला बहर यजरी वला फुल्कन यथरी इल्ला फी मोहब्बते हौलाइल खमसतिल्लज़ी हुम तहतल किसा। ऐ आसमान पर रहने वालों, ऐ मलाइका, मैंने आसमान का शामियाना नहीं बिछाया, मैंने जमीन का फर्श नहीं बिछाया, मैंने चांद सूरज की कंदीलियां नहीं बनाई, मैंने सूरज को नहीं खल किया, मैंने समंदर में चलने वाली किश्तियों को नहीं बनाया, मैंने समंदर में रवानी नहीं दी। लेकिन याद रखो, इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है, पालने वाले पता तो चला कि तूने पूरी कायनात को इनकी मोहब्बत में बनाया है, लेकिन पता तो चले पालने वाले ये कौन है। अल्लाह ने क्या कहा, उहुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। फातिमा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के बच्चे हैं। जब पाक पंजतन जब चादर में दाखिल हो गए, जब सबने सलाम किया और जब पाक पंजतन चादर में दाखिल हो गए, तो जिब्रील कहता, अल्लाह के रसूल हमें इजाजत है, मैं भी दाखिल होकर छठा बन जाऊं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं भी दाखिल होकर छठा बन जाऊं। इस एतबार से पूरी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एक एक आयत अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक फज़ाइल कान्नहुम बुनियानुन मरसूसुन का। इब्ने अब्बास, फिर क्या तुम यही पढ़ोगे, कोई दूसरी आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास ने कहा, अच्छा कोई दूसरी आयत पढ़े। इब्ने अब्बास ने क्या कहा, कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल, इन काफिरों से कह दीजिए कि हमारी रिसालत का गवाह अल्लाह है, अल्लाह का हमारा रिसालत का तुम्हारे दरमियान, हमारी रिसालत का गवाह अल्लाह है, और वो हमारे और तुम्हारे दरमियान वो शख्स है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। माविया ने कहा, हाँ हाँ समझ गया, नबी ने फरमाया है पूरी किताब का इल्म अली इब्ने अबी तालिब के पास है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पूरी किताब का इल्म जो है अली इब्ने अबी तालिब के पास है। लेकिन क्या इब्ने अब्बास यही पढ़ोगे, कोई और आयत पढ़ो, बस ये सुनना था। इब्ने अब्बास ने कहा, क्या कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। का समझ गए, ये पाक पंजतन जब चादर में जमा हुए थे, ये आयत तत्हीर नाज़िल हुई थी। क्या यही पढ़ोगे, कोई और आयत पढ़ो। फिर इब्ने अब्बास ने कहा, अच्छा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, अल्लाह का रसूल वली है, और वो शख्स वली है जो हालत रुकू में नमाज देता है। का समझ गया, हालत रुकू में ज़कात देने वाला अली इब्ने अबी तालिब है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हालत रुकू में ज़कात देने वाले अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये आयत अली के शान में नाज़िल हुई है। क्या यही आयत पढ़ोगे, कोई और आयत पढ़ो। फिर इब्ने अब्बास ने कहा, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। कहने लगे, हाँ वो जो रोज़ा रखा था ना, हसन हुसैन ने रोज़ा रखा था, अली और फातिमा ने रोज़ा रखा था। उस वक्त फातिमा ने 5 रोटियां पकाई थी, पकाकर साइल यतीम बनकर आया, मिस्कीन बनकर आया, असीर बनकर आया, ये उसको दिया गया। ये उन्हीं के शान में आयत नाज़िल हुई। लेकिन क्या यही आयत पढ़ोगे, कोई और आयत पढ़ो। बस इब्ने अब्बास ने कहा कि साला साइलुन बिअज़ाबिल वाक़े। कहने लगा, हाँ ये आखिरी वक्त जब नबी ने अली के विलायत का ऐलान किया, साइल आया, और साइल आकर कहता है कि अल्लाह के रसूल, ये जो आपने अली की विलायत का ऐलान किया है, अपनी तरफ से ऐलान किया है आपने या अल्लाह की तरफ से? कहा अल्लाह की तरफ से। कहा कि मैं नहीं मानता, और कहा कि अगर ये सही है तो आसमान से अल्लाह अज़ाब नाज़िल करे। साइलुन बिअज़ाबिल वाक़िया, यानी अली के विलायत का मुनकिर था
کہا جیسے ہی باہر نکلا ایک پتھر پڑا واسطے جہنم ہو گیا. کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کا کون سی آیت پڑھو؟ کا پڑھو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ آیت پڑھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اسے نہ چھوڑو, آپس میں متحد رہو. ابن عباس نے کہا پتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہنے لگا کہ یہ اللہ کی جو رسی جو ہے نا جس کو پکڑنے کا حکم ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اگر کائنات محمد اور آل محمد علیہ السلام سے منسلک رہتے تو آج دنیا تفرقے میں نہ بڑھتی, آج دنیا تقسیم نہ ہوتی اس اعتبار سے. لیکن کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی آیت اور پڑھو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہنے لگا ہاں پتہ ہے جب سارے نجران جب آئے تھے نا اور جھوٹوں کے خلاف جو ہے وہ لعنت بھیجنی تھی تو رسول علی کو لے گئے, فاطمہ کو لے گئے, حسن کو لے گئے, حسین کو لے گئے. یہ آیت ان کے شان میں نازل ہوئی. لیکن کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اس کے عوض اپنی رضا دے دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بہت مہربان ہے. کہنے لگا ہاں پتہ ہے شب ہجرت جب علی بستر پر سوئے تھے تو یہی آیت نازل ہوئی تھی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. شب ہجرت جب علی بستر رسول پر سوئے تھے جب یہی آیت نازل ہوئی تھی. کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہنے لگا ہاں یہ آیت تو مقام غدیر میں آخری وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علی کے ولایت کا اعلان کر دیجئے. نبی نے علی کے ولایت کا اعلان کیا, اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے. کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. علی کے ولایت کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. کہا یہ آیت علی کے ولایت کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اللہ نے دین کو مکمل کیا اس اعتبار سے. کیا یہی آیت پڑھو گے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کون سی آیت پڑھو؟ کا سورہ زلزال پڑھو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یعنی کیا وہ یہ سمجھتا تھا سورہ زلزال میں علی کا تذکرہ کہیں نہیں ہے, بس یہ سننا تھا. ابن عباس نے کہا معاویہ تجھے پتا ہے نبی کے انتقال کے بعد ایک سال بھی نہیں گزرا تھا مدینے میں زلزلہ آ گیا, لوگ اپنے گھر سے باہر نکل گئے, زمین جو ہے کانپ رہی تھی. علی ابن ابی طالب نکلنے کے بعد علی نے زمین پر پیر مارا اور پیر مار کے کہا کہ میں ابو تراب کہہ رہا ہوں, تو ساکن ہو جا. جیسے ہی علی نے کہا زمین میں اطمینان ہو گیا, زمین ساکن ہو گئی. تجھے پتا ہے جب بھی کوئی سورہ زلزال پڑھتا ہے فضیلت میں علی کی فضیلت ضرور بیان کرتا ہے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. زندہ باد. لہذا بیشتر مقامات پر قرآن جو ہے
वो अली और आले अली के फजाइल बयान कर रहा है। अली के फजाइल और आले अली के फजाइल इस एतबार से बेहतर मकामात पर। लेकिन फिर भी जो दुश्मन है, दुश्मनी का तरीका अलग अलग है। जब देखा कुरान में अली और आले अली के फजाइल है तो लफ्ज़ कुरान को ले लिया। किसी के सवाल हयात को बयान करने से क्या फायदा, किसी के फजाइल बयान करने से क्या फायदा। लफ्ज़ कुरान, फकत कुरान और कुरान और कुरान, कुरान के अलावा कुछ नहीं। कुरान जो कहता है वो करो, कुरान जो कहता है वो करो, कुरान पर अमल करो, कुरान पढ़ो। इस तरीके से शुरू हो गया। उसके बाद कहते हैं अच्छा आप लोग कुरान 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 करते हैं, लेकिन कुरान आप कुरान 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 कहते हैं, लेकिन आप में तो कोई हाफिज कुरान नहीं है। तरह अभी आज भी आप देखेंगे बाद औकात आता है कि आप में तो कोई हाफिज कुरान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज आले मोहम्मद के चाहने वालों में हाफिज कुरान की कमी नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज आले मोहम्मद के चाहने वालों में हाफिज कुरान की कमी नहीं है। जब इससे भी कुछ नहीं बन पड़ा, कहते हैं आप कहते हैं कि पूरा दीन आले मोहम्मद में है। तवज्जो चाहता हूँ, आप ये कहते हैं पूरा दीन आले मोहम्मद में है, ईमान आले मोहम्मद के साथ है और इस्लाम आले मोहम्मद के साथ है। आप ये कहते हैं सब कुछ आले मोहम्मद के साथ है, कुरान आले मोहम्मद के साथ है, दीन आले मोहम्मद के साथ है, लेकिन दीन आले मोहम्मद में नहीं है, दीन कुरान में है। तवज्जो चाहता हूँ, दीन कुरान में है। हम कहते हैं मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छी बात है। दीन कुरान में है, ईमान कुरान में है, नमाज कुरान में है, रोजा कुरान में है, अम्र बिल मारूफ कुरान में है, नहीं अनिल मुनकर कुरान में, सब कुरान में। ठीक है, पूरा सब कुछ कुरान में है, लेकिन तुम बताओ कुरान किसके साथ है? कुरान इमाम अबू हनीफा के साथ है, कुरान इमाम मालिकी के साथ है, कुरान इमाम हम्बल के साथ है, कुरान इमाम शाफी के साथ है, कुरान किसी गौस के साथ है, कुरान किसी कुतुब के साथ है, कुरान किसी दरवेश के साथ है, कुरान किसी पीर के साथ है। कुरान किसके साथ? सवारकुल मुहर्रका इब्ने हजर मक्की उम्मे सलमा रावी है, नबी ने फरमाया अलीउल माल कुरान वल कुरान माली। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या है? और अली उन्माल कुरान बल कुरान अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ला यफ्तरकान हत्ता यरदा इलैयल हौद, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे हत्ता के हौदे कौसर में पहुंचेंगे। तो कुरान किसके साथ है? कुरान अली के साथ है, कुरान आले अली के साथ है। इस एतबार से जब कुरान अली के साथ है, कुरान आले अली के साथ है, तो यकीनन जब कुरान अली के साथ है तो हम भी अली के साथ है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरान अली के साथ, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले भी अली के साथ। अब जहां कुरान अली है, तवज्जो चाहता हूं, जहां अली है वही कुरान है। मातरत के साथ हमारे कुछ बंगाली बिरादरान है, मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम की मजलिस में आए हैं। उर्दू जबान हो सकता है वो ना समझ सके। इमाम बारगाह में दाखिल होते होते उन्होंने कहा मौलाना कुछ बंगाली जबान में भी बयान कर दीजिएगा ताकि हम अली के दस्तरखान से, अली के इमाम बारगाह से हम भी वापस न जाए। मैं फिर 2 जुमला 4 जुमला बंगाली जबान में कहता हूँ। क्या कहा? कहते कि आपने क्या बोला? बोलते हैं कि क्या कि आप ये कहते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि दीन आले मोहम्मद में है। इसी का बंगाली तर्जुमा আপনারা বলেন দিন আলে মোহাম্মদের মধ্যে, অমুক নামাজ আলে মোহাম্মদের মধ্যে, রোজা আলে মোহাম্মদের মধ্যে, অমুক আলে মোহাম্মদের মধ্যে, সম্পূর্ণ জিনিস আলে মোহাম্মদের মধ্যে, কিন্তু না দিন কোরআনের মধ্যে, দিন কোরআনের মধ্যে আছে। আমরা বলি হ্যাঁ দিন কোরআনের মধ্যে আছে, নামাজ
নামাজ কোরআনের মধ্যে আছে, রোজা কোরআনের মধ্যে আছে, আমর বিল মারুফ কোরআনের মধ্যে আছে, নাহি আনিল মুনকার কোরআনের মধ্যে আছে, সব কিছু কোরআনের সঙ্গে। কিন্তু একটা কথা বলো, কোরআন কার সঙ্গে আছে? কোরআন কি ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে? না। কোরআন ইমাম মালিকির সঙ্গে? না। কোরআন ইমাম হাম্বল সঙ্গে? না। কোরআন শাফিঈর সঙ্গে? না। কোরআন কোন পীরের সঙ্গে? না। কোরআন কোন দরবেশের সঙ্গে? না। কোরআন কার সঙ্গে? কোরআন কার সঙ্গে? ইবনে হাজারে মক্কি সালায়ুল মক্কা মারাকা আলিউন ওয়াল কোরআন, আলিউন মাল কোরআন ওয়াল কোরআন মা আলী, আলী কোরআনের সঙ্গে, কোরআন আলীর সঙ্গে। দুরূদ পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, हत्ता कि हौदे कौसर पर वारिद होंगे। लिहाजा अली और आले अली कुरान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अली और आले अली कुरान के साथ है तो हम आले मोहम्मद के चाहने वाले, हम भी क्या है, हम भी आले मोहम्मद के चाहने वाले, हम भी कुरान के साथ है। अब जो आप कुरान के साथ रवैया होगा वही अली के साथ रवैया होगा। जैसा आप अली को समझेंगे वैसे ही आप कुरान को समझेंगे। क्यों? कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। ये दोनों आपस में जुदा नहीं हो सकते। कुछ ये कहते हमने कुरान ले लिया, कुछ ये कहते हमने अहले बैत ले लिया, हम ये कहते नबी ने कह दिया है। कुरान अहले बैत को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। दरूद भेजिए मोहम्मद। जिंदाबाद। भाई अगर हम ये कहें हमने अहले बैत को लिया है मादल्ला मादरत के साथ, मैं बारहा कहता हूँ वो आले मोहम्मद का शिया हो नहीं सकता। जो कुरान से दूर हो वो इमाम जमाना का मानने वाला हो नहीं सकता। जो कुरान से दूर हो, जो इमाम जमाना से नजदीक होगा वो कुरान से नजदीक होगा, जो अहले बैत से नजदीक होगा वो कुरान से नजदीक होगा। हम अगर ये कहें कि हमने अहले बैत को ले लिया, हमारे गैर ये कहें कि हमने कुरान को ले लिया, नबी ने कहा कुरान और अहले बैत आपस में जुदा नहीं होंगे, हौज़े कौसर में मेरे पास आएंगे। मैं कहता हूं जब जुदा होंगे नहीं तो लोगे कैसे? दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जंगलों में, पहाड़ों में, कुरान के तीसरों पारों में, समुंदर के दोनों किनारों में नारा चमक चमक कली कली अली 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 नजर नजर कली कली अली 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 अली। जब जुदा होंगे नहीं तो हम लेंगे कैसे? लेकिन बात फकत एक है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जैसा रवैया हमारा अली के साथ होगा वैसे ही रवैया हमारा कुरान के साथ होगा। जैसा सलूक हम अली के साथ करेंगे वैसा ही सलूक हम कुरान के साथ करेंगे। चूंकि दोनों एक है, जब दोनों एक है, अगर अली की तौहीन किया तो कुरान की तौहीन किया, अगर अली को पीछे छोड़ दिया तो कुरान को पीछे छोड़ दिया, अगर अली को आगे चले गए तो कुरान आगे चला गया, अगर अली घर में है तो कुरान घर में है, अली मस्जिद में है कुरान मस्जिद में है, अली मैदान में है कुरान मैदान में है, अली पहाड़ में है कुरान पहाड़ पे है।
हूँ अरबाब अदा, एक मिसाल देने जा रहा हूँ, सुनो। क्या मिसाल ये है कि 4 अफराद थे, 3 गैर सैयद था, उसमें एक सैयद था, सैयद के पास कुरान है। तवज्जो चाह रहा हूँ, 4 अफराद थे, 3 गैर सैयद था, एक सैयद था, सैयद के पास कुरान है। अब ये 3 गैर सैयद आगे चले गए, सैयद को पीछे कर दिया, सैयद को नहीं कुरान को पीछे कर दिया। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरान को पीछे कर दिया। इसी एतबार से अगर मिंबर है, मिंबर पर अगर गैर सैयद भी है, एक सादात सैयद है, उसके पास कुरान है, अगर गैर सैयद मिंबर पर चला गया, सादात से सैयद मिंबर के नीचे बैठा रहा, इन क्या कुरान को नीचे कर दिया। अगर सैयद ऊपर चला गया तो कुरान ऊपर के चला गया, सैयद आगे चला गया तो कुरान आगे चला गया। जो रवैया कुरान के साथ होगा वही रवैया अली के साथ होगा। याद रखिए, हस्बना किताब अल्लाह कहने वाले हमें कुरान काफी है, ये वही लोग थे जिन्होंने जंग सिफीन में कुरान को नेज़े पे बुलंद किया। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा इस एतबार से कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क्या सवारकुल मुहर्रका इब्न हजर मक्की उम्मे सलमा रावी, नबी ने फरमाया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पर वारिद होंगे। अब आइए मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ में नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैज़ु मा दारा अली, ऐ अल्लाह हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ते चले जाए। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ऐ अल्लाह हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ते चले जाएं। ये नहीं कि हक आगे आगे हो, अली पीछे पीछे हो, अली जिधर जिधर जाए हक उधर उधर जाए। अली का जाना जो है हक है। अली अगर घर में बैठा रहे तो हक अली के साथ है, मस्जिद में रहे तो हक अली के साथ है, जंग में रहे तो हक अली के साथ है, जंग सिफीन में रहे तो हक अली के साथ है, जंग जमल में रहे तो हक अली के साथ है। नबी ने क्या कहा, सारी दुनिया एक तरफ हो, अली एक तरफ हो, जिधर अली हो हक उधर है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अली 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 समझ में आया। जहां हक है वहां अली इब्न अबी तालिब है, जहां कुरान है वहां अली है, जहां हक है वहां अली है। सही बुखारी की पहली जिल्द है, पहली जिल्द है क्या, पहली जिल्द के पहली जिल्द है वयदऊहुम इलल्लाह, यानी क्या, अली की दावत जो है अल्लाह की तरफ है। अली जो दावत देते हैं ना, अली की दावत अल्लाह की तरफ है। दूसरी जिल्द है इसी तरीके से वयदऊहुम इलल जन्नह, अली की दावत जो है वो जन्नत की तरफ है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कुरान अली के साथ है, हक अली के साथ है, अल्लाह अली के साथ है, मोहम्मद अली के साथ है, जन्नत अली के साथ है, ये सब अली के साथ, अली के साथ। तो हम पागल हैं अली को छोड़कर इधर उधर भटकते फिरे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
साथ, जन्नत अली के साथ, हक अली के साथ, और क्या है, कुरान अली के साथ, ईमान अली के साथ। नहीं समझ में आया आपको ईमान अली के साथ? जब उमर इब्न अब्दवत आया था और कह रहा था, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ये कहना है कि हम मर गए तो शहीद और बच गए तो गाजी, और दोनों सूरत में जन्नत है, अपनी तलवार से रेतते हुए तुम्हें हम जन्नत में पहुंचा दे। मुसलमानों के सरों पर दायर बैठे हुए थे, किसी का सर अपने मकान से हिलता नहीं था, बार बार अली इब्न अबी तालिब खड़े होते थे, अल्लाह के रसूल हमें इजाजत दे दीजिए। नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ, फिर अली ने कहा अल्लाह के रसूल हमें इजाजत दीजिए, बैठ जाओ। लेकिन बार बार वो तौहीन कर रहा है कोई तुम में जो मैदान में आए? उमर इब्न अब्दुल 3 मरतबा अली ने कहा, आखिर में नबी ने क्या कहा, अपना मामा अली के सर पे रखा, अपना अबा अली को पहनाया, घोड़े पर सवार किया। जब अली चलने लगे तो नबी ने क्या फरमाया, बरज़उल ईमान कुल्लहु अलल कुल्ल कुफ्रही, बरज़उल ईमान कुल्लहु अलल कुल्ल कुफ्रही। आज सारा ईमान सारे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जो आ रहा है वो कुल्ले कुफ्र है, जो जा रहा है वो कुल्ले ईमान है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ईमान सारे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब गया, जाने के बाद उमर इब्न अब्दुल को कहा कि तुम उतर जाओ। उसने कहा नहीं, मैं घोड़े से। इमाम ने फरमाया, मैंने सुना है जो भी तेरे मुकाबले में आएगा तू उनकी 3 बातों में से एक बातों को जरूर सुनेगा। पहली बात यह है कि ईमान ले आ। उसने कहा यह नहीं हो सकता। मौला ने कहा लौट जा। उसने कहा मन औरतें हमें ताना देंगी। मौला ने कहा अच्छा एक काम कर, घोड़े से उतरा। वो घोड़े से उतर गया। उतरने के बाद अली इब्न अबी तालिब के दरमियान जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई, अब इस मकाम पर कहने वाले ये कहते हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर इब्न अब्दुल को घोड़े से क्यों उतरवा लिया। लिखने वालों ने ये लिखा कि चूंकि नबी ये कह चुके थे आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जो जा रहा है वो कुल्ले ईमान है, जो आ रहा है वो कुल्ले कुफ्र है। अगर अली उमर इब्न अब्दुल को घोड़े से ना उतरवा लेते तो घोड़ा भी कुल्ले कुफ्र में शामिल हो जाता। घोड़ा भी कुल्ले कुफ्र में शामिल हो जाता। अली ने एक बेजुबान की नस्ल को अली इब्न अबी तालिब ने बचाया। बचाने के बाद जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर इब्न अब्दुल के सर पर ऐसा दर्ब लगाया कि वो वासिल जहन्नम हुआ। जब वासिल जहन्नम हुआ तो नबी ने क्या फरमाया, ज़रबतु अलीइन यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत पूरी सकलैन की इबादत पर भारी है। मुसलमानों समझ में आया, खुदा भी अली के साथ है, रसूल भी अली के साथ है, जन्नत भी अली के साथ है, कुरान भी अली के साथ है, हक भी अली के साथ है, ईमान भी अली के साथ है। और अली की एक ज़रबत जो सकलैन की इबादत पर भारी है, इबादत भी अली के साथ है। जरूर है ये मोहम्मद और आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह। इबादत सकलैन की इबादत पर अली की एक ज़रबत भारी है, जिसकी एक ज़रबत
सकलैन की इबादत पर भारी हो, उसकी नमाज कैसी होगी, उसका रोजा कैसा होगा, उसका हज कैसा होगा, हालत रुकू में उसका ज़कात देना कैसा होगा, जिसकी एक दरबत सकलैन की इबादत पर भारी हो, एक दरबत, बाकी इबादतों को छोड़िए, बाकी इबादत का क्या आलम होगा। ईमान किसके पास, कुल्ले ईमान कौन, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी ने फरमाया आज जो अली के फतह की खबर सबसे पहले लाएगा वो मेरे साथ सबसे पहले जन्नत में जाएगा। जब उमर इब्न अब्दवत ने बुलाया था तो कोई नहीं गया, सबके सरों पर पाए तार परिंदे बैठे हुए थे, लेकिन जब नबी ने कहा कि आज जो अली के फतह की खबर लाएगा सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब कुछ अफराद गए खबर लाने के लिए, जनाब सलमान फारसी है नबी के पास बैठे हुए हैं, सलमान नहीं जा रहे हैं। नबी ने सलमान से कहा सलमान सब चले गए तुम नहीं गए। जनाब सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या जन्नत के खातिर मालिक जन्नत को छोड़कर चला जाऊं, जरूर भेजिए मोहम्मद अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। क्या अल्लाह के रसूल क्या जन्नत की खातिर मालिक जन्नत को छोड़कर चला जाऊं, सब चले गए। जनाब सलमान फारसी नहीं गए, उसी मकाम पर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जब अली ने उसे वासिल जहन्नम किया, एक अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद हुई, गर्द गुब्बार बुलंद हुआ। जनाब सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल मुबारक हो मुबारक हो, अली ने जंग जीत ली, अली ने जंग जीत ली, अली ने जंग जीत ली। अब कुछ अफराद पीछे से हकाते प्यासे हाँफते हुए कांपते हुए नबी के पास आए, कहा कि या नबी अल्लाह अली ने जंग जीत ली। नबी ने कहा मुझे खबर तो पहले ही मिल गई। अल्लाह के रसूल किसने आपको खबर दिया, पहले लोग तो हम हैं, हम दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, आपको पहले खबर पहुंचाएंगे। खबर आपको कैसे मिली, का सलमान ने बताया। का सलमान तो गए भी नहीं थे, बताया कैसे, का सलमान से पूछो। सलमान से कहा सलमान तुम गए नहीं थे, बताया कैसे। सलमान ने कहा तुम लोगों को दौड़ के जो आता हुआ देखा, मैं समझ गया कि अली ने जंग जीत ली, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एतबार से कुल ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली की ज़रबत जो है वो सकलैन की इबादत पर भारी। और आगे आइए, क्या नबी ने कहा या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, अय अली तुम काबे के मंदिर में हो, तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है रवायत में है मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की मिसाल है, जैसा काबा है वैसा इमाम है। यानी क्या, काबा ईंट का है, काबा पत्थर का है, काबा फला है, इमाम वैसा है नहीं, इमाम वैसा नहीं है कि काबे की मिसाल काबा पत्थर का है, मादल्ला इमाम पत्थर का है, नहीं, ये मिसाल नहीं है। मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की है। या अली अंत बिमंज़िलिल काबा, ऐ अली तुम काबे की मानिंद हो, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है। दोनों में वजह मुशबाहत क्या है, दोनों में वजह शबाहत क्या है कि सारी दुनिया काबे के पास जाती है, काबा किसी के पास नहीं आता। सारी दुनिया काबे के पास जाती है, काबा किसी के पास नहीं आता। अली तुम्हारी मिसाल काबे की है, कायनात तुम्हारे पास जाएगी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
पास जाती है, काबा किसी की हिदायत के लिए नहीं आता। इसी तरीके सारी कायनात अली की मोहताज है, अली के पास जाएगी, अली किसी के पास नहीं आता। इस एतबार से नबी ने अली को शबाहत दी है। काबे से बाद लोगों से पूछो कि काबा बेहतर है या अली, कहते काबा बेहतर है। कुछ वो है जो कहते काबा बेहतर है, हम उनसे पूछते तुम्हारे पास दलील क्या है? काबा बेहतर है, कहते काबा अल्लाह का घर है, हम भी मानते हैं। काबा अमन की जगह है, हम भी मानते हैं। काबा तमाम मुसलमानों के लिए मरकज है, हम भी मानते हैं। काबा जो है सारे आलमीन के लिए हिदायत का सबब है, हम भी मानते हैं। अगर काबे की तरफ को रुक करके नमाज न पढ़े नमाज बातिल हो जाएगी, हम भी मानते हैं। एक कहता है कि काबा बेहतर है, एक जो करो कहता अली बेहतर है, जो करो कहता काबा बेहतर है। उसने मैं कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? उसने कहा काबा बैतुल्लाह है, तवज्जो चाहता हूं। उसने कहा काबा बैतुल्लाह है, काबा के पास काबा अल्लाह का घर है। मैंने कहा सुनो अली में काबे में यही फर्क है, काबा बैतुल्लाह है, एक अल्लाह लगा हुआ है, बैतुल्लाह एक अल्लाह लगा हुआ है, लेकिन अली के साथ एक अल्लाह नहीं, आकैनुल्लाह है, कानाजुल्लाह है, आकैनुल्लाह है, कानजुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, नफ्स नफ्सुल्लाह है, नफ्स नफ्सुल्लाह है। सुनो अली का दुश्मन रहमतुल्लाह है, अली का दुश्मन लानतुल्लाह है। काबा अली की आंख ऐनुल्लाह है, अली का कान उज़ुनुल्लाह है, अली का चेहरा वजुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह है, अली का दोस्त रहमतुल्लाह है, अली का दुश्मन लानतुल्लाह है। इस एतबार से अली अली है। क्यों अली अली है? इसलिए नहीं कि फातिमा का शौहर है, अली अली इसलिए नहीं है कि नबी का दामाद है, अली इसलिए नहीं है कि नबी का चचाजाद भाई है, अली अली इसलिए नहीं है कि हसनैन का बाबा है, अली इसलिए अली है कि अल्लाह ने अली को अली बनाया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह ने अली को अली बनाया है। अल्लाह अली के साथ, नबी अली के साथ, कुरान अली के साथ, हक जो है वो अली के साथ, ईमान अली के साथ, दीन अली के साथ, काबा अली के साथ, जन्नत अली के साथ। दुनिया के जितने पीर है ना सब अली के साथ, दुनिया का जितना मुर्शिद है ना सब अली के साथ, दुनिया का जितना दरवेश है ना सब अली के साथ। मैंने कहा ना पीर पीर नहीं हो सकता, वली वली नहीं हो सकता, अब्दाल अब्दाल नहीं हो सकता, कुतुब कुतुब नहीं हो सकता, दरवेश दरवेश नहीं हो सकता जबकि इमाम अली को अपना वली न माने। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं वली न माने, इमाम अली को अपना वली न माने नहीं हो सकता। इस एतबार से फरीदुद्दीन औलियाए कराम बड़े बड़े जो गुजरे हैं, बहाउद्दीन ज़करिया और फरीद शक्करगंज जो बड़े बड़े औलियाए कराम गुजरे हैं, इनसे कहा गया आप अली 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 करते हैं, आप भी वली हैं, अली भी वली है, फिर आप अली अली
علی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ دیکھو ہم بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے۔ تم گیہوں کھاتے ہو نا گندم؟ کہا ہاں ہم گندم کھاتے ہیں۔ کہا کہ جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار جن کے پاس کھیت ہے، جو ہزاروں بیگھا کا مالک ہے، وہ بھی گندم کھاتا ہے، تم بھی گندم کھاتے ہو۔ جو کاشت کرتا ہے نوکر اس کی زمین پر، وہ بھی گندم کھاتا ہے، مالک بھی گندم کھاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ ذمہ دار اپنی گندم کھاتا ہے اور جو ذمہ دار کے کھیت میں کام کرتا ہے وہ مالک کی دی ہوئی گندم کھاتا ہے۔ کہا کہ ہم اور علی میں فرق یہی ہے، ولایت علی کی اپنی ہے، ہم اس دروازے کے بھکاری ہیں۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ولایت علی کی اپنی ہے، ہم اس دروازے کے بھکاری ہیں۔ اسی ولایت کے ناطے بہت زیادہ قربانی ہوئی، یعنی کیا ابن بہت زیادہ قربانی ہوئی اسی ولایت کے ناطے۔ میثم تمار کی زبان کاٹی گئی اسی ولایت کے ناطے۔ حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا اسی ولایت کے ناطے۔ مالک اشتر کو شہید کیا گیا اسی ولایت کے ناطے۔ امام کے اصحاب و انصار شہید ہوئے اسی ولایت کے ناطے۔ اسی ولایت کے ناطے محمود ابن لبید ایک شخص ہے، اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں بھی یہ واقعہ لکھا کہ محمود ابن لبید یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے قریب ایک خاتون بیٹھی رو رہی ہے، اس کے ساتھ 4 بچے ہیں، وہ عورت بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، جب قریب گیا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا رو رہی ہیں، اور فاطمہ زہرا کو دیکھ کر بچے بھی رو رہے ہیں کہ شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا 2 مصیبت نے ہمیں مار ڈالا، 2 مصیبت نے ہمیں ختم کر دیا۔ ایک بابا کا دنیا سے جانا میرے لیے بہت سنگین ہوا، دوسرا علی کا حق غصب کر لیا گیا، یہ ہمارے لیے بہت سخت ہو گیا۔ کہ شہزادی آپ کے بابا کو دنیا سے جانا تھا، جو آیا ہے وہ تو جائے گا، صبر کیجئے، لیکن اب رہ گیا علی کی ولایت۔ علی کی ولایت اگر مسلمانوں نے علی کی ولایت کو غصب کر لیا، علی کی خلافت کو غصب کر لیا، تو علی کو خود جا کر بتانا چاہیے تھا، علی کو اور وضاحت دینا تھا۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا میرے بابا اور کیا اہتمام کرتے، 1,10,000 صحابیوں کا مجمع تھا، 1,10,000 حاجیوں کا مجمع تھا، اس مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کہا کہ اچھا یہ علی کو اگر حق نہیں دیتے تو علی کو خود جا کر لینا چاہیے۔ فاطمہ زہرا نے کہا، کیا کہا امام نے کہ مثل الامام مثل الکعبہ، اے محمود ابن لبید امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، دنیا کعبے کی طرف جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں آتا۔ علی پر بہت ظلم ہوا، اسی ولایت کے ناطے ارباب اعضا جناب فاطمہ زہرا پشت باندھے ولایت تھی، ولایت کے ناطے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیوں کی ہڈی توڑی گئی، ولایت کے ناطے جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ ارباب اعضا یہی علی کی ولایت تھی، ارباب اعضا علی کی دشمنی تھی کہ نبی نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اسی ولایت کے دشمنی کے ناطے ارباب اعضا پتہ ہے آپ کو کہ شب قدر کی رات میں علی کے سربت پہ ضربت لگائی گئی۔ ارباب اعضا کیسی ضربت، 1,000 درہم میں تلوار خریدا گیا، 1,000 درہم ارباب اعضا زہر میں تلوار کو بجھایا گیا۔ پورا اہتمام یہ ہے کہ علی دنیا سے چلے جائیں، علی بچنے نہ پائے۔ ارباب اعضا شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی، ہمارا امام بستر پہ تڑپتا رہا۔ ارباب اعضا دوسرا دن بھی گزرا،
دینا. آج شب یقین ہے ارباب اللہ ہمارا اور آپ کا امام دنیا سے گزر جائے گا. آج زینب کی یتیمی کی رات ہے, آج ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے, آج کائنات کے یتیموں کے یتیمی کی رات ہے, آج ہمارے آپ کے یتیمی کی رات ہے. ارباب ادا اس طریقے سے امام علی گزرنے والے ہیں. ارباب ادا پتہ ہے آپ کو ارباب ادا یتیمی کیا ہے؟ میں بتاؤں ارباب ادا. ہمارے جب 8ویں امام رضا علیہ السلام مدینے سے چلے, امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹے تھے, امام مدینے سے چلے خراسان آ رہے ہیں. امام محمد تقی نے کیا کیا؟ گرد و غبار مٹی خاک لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا, دارو قطار رونے لگے. امام رضا نے فرمایا بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ امام محمد تقی نے کہا بابا جس اولاد کو یہ یقین ہو جائے کہ میں یتیم ہو جاؤں گا, بابا جس اولاد کو یہ یقین ہو جائے کہ میں یتیم ہو جاؤں گا وہ اولاد ایسا نہ کرے تو اور کیا کرے. امام محمد تقی کو یقین ہے کہ میرا بابا جو جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے گا, میرے بابا کو زہر سے شہید کر دیا جائے گا. آپ نے سنا ہے شب عاشور جو حسین کا ذوالجناح آگے بڑھا, امام نے کہا ہے ذوالجناح تیرا آقا چند گھنٹے کا مہمان ہے, لیکن ذوالجناح اپنے پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حسین نے کیا دیکھا؟ سکینہ لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے روڑے, بابا کو مقتل میں نہ لے جانا, میں یتیم ہو جاؤں گی, میری یتیمی کا سامان نہ کرنا. اور اللہ حسین اٹھے, سکینہ کو لیا, گلے سے لگایا, سینے پر سلایا. اور آج زینب کی یتیمی کی رات ہے, ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے. بچیاں سمجھ رہی میرا باپ دنیا سے چلا جائے گا. امام علی نے کیا کیا؟ بچوں کو بلایا, بلانے کے بعد امام علی نے وصیت کیا. امام حسن سے وصیت کیا, امام حسین سے وصیت کیا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا بیٹا جب سب وصیت امام کر چکے, مرغابیوں کے بارے میں امام نے وصیت کیا, مرغابیوں کے بارے میں بھی امام وصیت کر چکے. ارباب اعزاز جو امام جانوروں کے حق کو نہیں بھولتا بھلا وہ انسانوں کے حق کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک مرتبہ کا بیٹا حسن میں اگر دنیا سے گزر گیا تو ابن ملجم کو ایک ہی وار لگانا, اور بیٹا دیکھو میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن ملجم پر تمام ہمارے قبیلے والے ٹوٹ جائے, ابن ملجم کے ساتھ یہ ذاتی کرے, بیٹا ذاتی نہ ہونے پائے. اور ساتھ ہی ساتھ کہے ابن بیٹا حسن میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے ابن ملجم جب مر جائے اسے ساتھ لے لیا جائے تو اس کے لاش کے ساتھ توہین نہ کیا جائے. میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے اگر درندہ جانور بھی اگر مر جائے اس کے لاش کے ساتھ توہین نہیں کرتے. میں کہوں گا مولا وہ ابن ملجم جس نے آپ کے سر پہ ضربت لگائی, زینب اور ام کلثوم کو یتیم کیا, کائنات کو یتیم کیا, آپ کہہ رہے ہیں اس کی لاش کے ساتھ توہین نہ کرنا, اس کی لاش کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا. مولا کربلا میں کہا ہے آپ کربلا میں آئی ہے مولا, ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے, حسین کے جسم پر سر نہیں ہے میرے مولا, لباس بھی ظالم لے گئے میرے مولا, اور مظالم تو کیسا مظالم ہے میرے مولا کہ جب ایک مرتبہ زینب آئی ہے, زینب کی نظر حسین پر پڑی ہے تو حسین کے ہاتھ میں انگلیاں نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے زینب نے کہا بھیا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کہاں گئی؟ جب ملعون نے انگوٹھی کے خاطر حسین کی انگلیوں کو کاٹ لیا, گھوڑے کو دوڑا دیا, لاش حسین کی پامال ہو گئی. میرے امام کاش کربلا میں ہوتے. اے رحیم ابن رحیم, اے کائنات پر رحم کھانے والے امام, آپ کے اپنے فرزند کی حالت دیکھیے مولا. اس کے بعد کیا ہوا ارباب اعزاز؟ ایک مرتبہ وصیت کرتے کرتے ہمارے امام وصیت بھی کر رہے ہیں, بیٹا حسن خدا حافظ السلام علیکم, بیٹا زینب سر خدا حافظ السلام علیکم, حسین خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم. ایک مرتبہ حسن نے کہا بابا آپ سلام کسے کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں فی امان اللہ خدا حافظ تمہیں کہہ رہا ہوں اور سلام کر رہا ہوں, مجھے لینے کے لیے اللہ کے رسول آئے ہیں. ختیجۃ الکبریٰ تمہاری نانی ختیجۃ الکبریٰ آئی ہے, میرے چچا جناب حمزہ آئے ہیں, میرے بھائی جعفر تیار آئے ہیں, بیٹا ہمیں لینے کے لیے
तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा आई है। इस एतबार से अरबाब अदा हो गया। अरबाब अदा एक मर्तबा अली की आवाज खामोश हो गई। हमारा और आपका पहला इमाम, ऐ हमारी माएँ, ऐ हमारी बहनें, खुदा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे सर पर बाप का साया सलामत रखे। आज कायनात का बाप, आज कायनात का इमाम दुनिया से गुजर गया। अरबाब अदा एक दफा इमाम जब गुजर गए, ज़ैनब अरबाब अदा दारो कतार रोने लगी, उम्मे कुलसुम रोने लगी। हसन बड़े ज़ैनब को सीने से लगाया, हुसैन बड़े ज़ैनब को सीने से लगाया। मैं एक जुमला कहूंगा, ज़ैनब आप खुश नसीब हैं, उम्मे कुलसुम आप खुश नसीब हैं। जब आपका बाबा शहीद हो गया और आप रो रही हैं तो कम से कम एक भाई तो है जो सीने से लगा रहा है, सर पे हाथ रख रहा है, तसल्ली और दिलासा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ज़हरा, ऐ उम्मे कुलसुम, करबला में आप तो मौजूद थी जब सकीना का बाबा मरा, जब सकीना का बाबा शहीद हुआ तो कौन सा भाई था जो सकीना के सीने पर हाथ रखा सकता, सकीना के सर पे हाथ रखता। सैयदे सज्जाद के हाथ में हथकड़ी थी, पैर में बेड़ी थी, गले में तोखे खासदार था। सैयदे सज्जाद अपनी बहन के लिए सहारा न बन सके। ज़ैनब उम्मे कुलसुम रोते रोते गिर गई। जैसे ही ज़ैनब उम्मे कुलसुम रोते रोते गिरी है, एक मर्तबा इमाम हसन ने उठाया, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने उठाया। मैं कहूंगा मौला करबला में सकीना गिरी पड़ी है, मौला कोई उठाने वाला नहीं है जो सकीना को उठाए। हाँ, उठाया किसने? शिब्र के तमाचे